Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 4 और 5। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू, पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। देख रहे हैं तीसरा स्कंद 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 4 और 5। श्लोक पढ़ता हूँ। सनकं च सानंदं च सनातनम् अथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिं निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। इन बिगनिंग ब्रह्मा जी created 4 great sages named Sanak, Sananda, Sanatan and Sanat Kumar. All of them were unwilling to adopt materialistic activities because they were highly elevated due to their seventh flow upwards. तात्पर्य का कुछ लाइन पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। Although Brahma created the principles of science as a matter of necessity for those living entities who are destined to ignorance by the will of the Lord, he was not satisfied in performing such thankless tasks. He therefore created 4 principles of knowledge: Sankhya, or empirical philosophy for the analytic study of material conditions; Yoga, or mysticism for liberation of the pure soul from the bondage; Vairagya, the acceptance of complete detachment from material enjoyment in life to elevate oneself to the highest spiritual understanding; and tapas, or various kinds of voluntary austerities performed for spiritual perfection. Brahma created the 4 great sages Sanak, Sananda, Sanatan and Sanat to entrust them with these 4 principles of spiritual advancement, and they inaugurated their own spiritual party or sampradaya known as Kumar Sampradaya, or later on as Nimbarka Sampradaya, for the advancement of bhakti. All of these great sages become great devotees, or without devotional service to the personality of Godhead, one cannot achieve success in any activity of spiritual value. श्लोक 5 भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तान बभाषे स्वभुव पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। Brahma ji spoke to his sons after generating them. My dear sons, he said, now generate progeny. But due to their being attached to Vasudeva, Supreme Personality of Godhead, they aimed at liberation, and therefore they expressed their unwillingness.
तात्पर्य पढ़ते हैं कुछ लाइन हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The four sons of Brahma, the Kumaras, declined to become family men on the request of the great father Brahma. Those who were serious about gaining release from the material bondage should not be entangled in the false relationship of family bondage. People may ask how the Kumaras could refuse the order of Brahma, who was their father and above all the creator of the universe. The reply is that one who is Vasudeva Parayana or seriously engaged in devotional service of the personality of God, and Vasudeva did not care for any other obligation. It is enjoined in Bhagavatam 11.5.41. वो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिवृत्य कृत्यम. Anyone who has completely given up all worldly relationships and has taken absolute shelter of the lotus feet of the Lord, who gives us salvation and who alone is fit to be taken shelter of, is no longer a debtor or servant of anyone, including the demigods, forefathers, sages, other living entities, living relatives, and the members of human society. Thus, there was nothing wrong in the acts of Kumaras when they refused their great father's request that they become family men. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे हम लोग आज के जो श्लोक है 4 और 5, इसको प्रभुपाद जी के कृपा से, आचार्यों की कृपा से, गुरु और सभी वैष्णव के आशीर्वाद से प्रार्थना करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाना शास्त्र विचारणे कनिपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो. श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल. सर्वस्याहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्. ओके, तो यहाँ पे आज के श्लोक में, यहाँ पे पहला जो श्लोक है श्लोक नंबर 4, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भागवतम क्या कहता है. सनक और सनातन, सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार जो थे, ये ब्रह्मा जी इनकी रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं. और शुरू ये जो थे सारे, ये भौतिक गतिविधियों में लिप्त होने से वो नकार रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही भक्ति में वो जो थे आगे थे, बहुत तीव्र भक्ति कर रहे थे. और यहाँ पे भागवतम कहता है ऊर्ध्व रेतसः, उनका जो रेत है, उनका जो सेमन है वो ऊपर की तरफ जो जाता है. तो कहते हैं ना, आमतौर पे जो सेमन है जब डिस्चार्ज होता है तो सारे जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सबका ह्रास होता है. लेकिन वही वीर्य जब ऊपर की तरफ जाता है तो जो शक्तियां हैं, खास करके आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं. तो प्रभुपाद जी खास करके कहा करते थे कि जो ज्यादा मैथुन वगैरह में जो लिप्त रहते हैं, वो उनके बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, उनका शरीर, उनके घुटने बहुत कमज़ोर होते हैं. और वही जो भक्ति में जो लिप्त है, जो अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसका जो आध्यात्मिक शक्ति है बहुत ही मजबूत होता है और उसका स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होता है.
यहाँ पे हम लोग देखते हैं तात्पर्य में अब श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इसके पहले हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने अज्ञान के जो थे 5 वस्तुएं बनाई थी जो भौतिक जो लोग हैं उनके लिए, और ये भगवान की इच्छा से ही बना थी और वो इससे खुश नहीं थे क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब अज्ञान का निर्माण करना उनको अच्छा नहीं लगा, ये क्या काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक भगवान का इच्छा है तो उन्होंने बनाया, और इसके पश्चात फिर उन्होंने अज्ञान के बाद ज्ञान के ये 4 प्रिंसिपल हैं, सांख्य, योग, वैराग्य और तप। ये इन्होंने ब्रह्मा जी ने ये बनाए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं सांख्य जो है ये जो भौतिक कंडीशंस है उसके अध्ययन के लिए है, कि योग जो है वो भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए है, वैराग्य इस भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए, और अपने आप को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञान में आगे उन्नत करने के लिए, और तपस जो है वो हमको आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्र सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार को की रचना की, और इन 4 को ये एक एक डिवीजन दे दिया। सांख्य जो था वो एक को दे दिया, योग जो है वो एक को दे दिया, वैराग्य, तपस, ऐसे ये 4 पुत्रों में इनको ये बांट दिया उनको। और उन्होंने अपना जो संप्रदाय है आगे वो शुरू किया, जिसको कुमार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार। ये 4 संप्रदाय हैं जिनने शुरुआत की। और कुमार संप्रदाय में बाद में कलयुग में निम्बार्काचार्य आए थे और उन्होंने इसको आगे, इस कुमार संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, और इसलिए इनको इस संप्रदाय को निम्बर्क संप्रदाय भी कभी कभी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। All of these great sages became great devotees. ये चारों जो थे बहुत महान भक्त बने। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना भक्ति के कोई आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये चारों पुत्र जो थे वो इस जो संप्रदाय को जो थे उन्होंने अच्छे से उन्होंने फैलाया, उन्होंने काफी जो है इसको आगे बढ़ाया उन्होंने। और फिर जो यहाँ पे हम देखें तो इसी श्लोक में है ये जो 4 पुत्र हैं, हम देख रहे हैं कि इनका भौतिकता में कोई इनका रुचि नहीं है और ये भक्ति करना चाहते हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी का इच्छा है कि ये प्रजा बढ़ाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे और प्रजा बढ़ाए। लेकिन इस चीज में इन 4 पुत्रों को कोई बिल्कुल भी रुचि नहीं था, क्योंकि वो भक्ति में बहुत ही आगे उन्नत थे। तो ये जो कार्य है ये उनको पसंद नहीं था, शादी करना, मैथुन करना, बच्चे प्रजा। तो ये जो थे ये जैसे कहते हैं कि जैसे कुछ भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी भक्त होते हैं, सन्यासी भक्त होते हैं, और कुछ भक्त जो होते हैं गृहस्थ भक्त होते हैं। तो जो कुछ जो ब्रह्मचारी वो सीधा ब्रह्मचर्य से सन्यास की तरफ और बढ़ जाते हैं, और कुछ जो हैं वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर इस जो छोटी सी छूट मिली है विवाह की, इसमें फिर वो जो है संबंध बनाकर वो जो है अच्छे बच्चे पैदा करके वो भक्ति का जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है वो सीधा वो भक्ति के प्रचार कार्य में लग जाते हैं, उनको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना होता। तो ये इस श्लोक में देखने मिलता है। और श्लोक नंबर जो अगला 5 है, श्लोक नंबर 5, उसमें कहा गया है ब्रह्मा जी बाद में अपने पुत्रों से कहते हैं, प्रिय पुत्रों, अब तुम प्रजा का जो था आगे सृजन करो। लेकिन उनका मन जो था, भागवतम कहता है कि उनका मन वसुदेव भगवान कृष्ण में इतना लगा हुआ था कि उन्होंने मोक्ष को ही अपना उद्देश्य बना लिया, और इसलिए उन्होंने
इस बात के लिए इनकार कर दिया। श्लोक नंबर 5 में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बहुत भक्ति में उन्नत होने के कारण उन्होंने जो था मोक्ष को प्राप्ति करनी थी, और मोक्ष प्राप्ति के कारण उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में अब श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जिनको चतुर कुमार कहा जाता है, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, हम लोगों को ये सब पचड़े में नहीं पड़ना है, हम लोग को विवाह नहीं करना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वास्तविक रूप से इस भौतिक बंधन से निकलना चाहते हैं वो इस गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ते शादी विवाह के मामले, क्योंकि ये एक ऐसा कुआं है कि इसमें गिरकर आदमी फंस सकता है। चतुर वही होगा जो इसमें जाकर इससे बाहर निकल सके। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि हम लोग बहुत से भक्तों को देखते हैं, भक्तों को नहीं, आम लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमको मंदिर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। जब भी जाए उनके पास जाओ, बोलते हैं नहीं, इतना काम पड़ा है, उन बच्चों को देखना है, घर परिवार चलाना है, मंदिर के लिए टाइम नहीं है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि ये जाला जो है ये बनाया कौन? मतलब ऐसा घर बना लिया तुमने जिससे बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं बनाया। हम लोग क्या करते हैं, पहले दरवाजा बनाते हैं ताकि अंदर जा सके और बाहर आ सके। ये हम लोग कैसे मूर्खता कर रहे हैं कि हमने अंदर जाने का तो रास्ता बना लिया इस घर में, लेकिन इससे बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो वैसे ही जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो एक जिसका भक्ति की तरफ जिसका इंक्लिनेशन है, वो क्या करता है, वो इसमें विवाह तो करता है लेकिन इससे बाहर निकलने का भी प्लान करता है। हम लोग देखते हैं आगे 22वें अध्याय में, इसी स्कंद के 22वें अध्याय में जो कर्दम मुनि है, जब उनके पास देवाहुति का ये आता है, प्रस्ताव आता है, तो उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी समय वो बोल देते हैं कि जैसे ही पहला पुत्र होगा मैं सब छोड़ के अपने भक्ति कार्य में लग जाऊंगा, मैं संन्यास ले। तो उनका माइंड जो था पूरा फोकस था कि मुझे विवाह भी करना है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, बिजनेस बड़ा करने के लिए नहीं करना है, अच्छा सुंदर पत्नी के लिए नहीं करना, बस मुझे ये एक कार्य दिया गया है, इसके लिए मैं करूँगा, प्रजा उत्पन्न करनी है। तो वो एक बहुत ही महा जो है भयंकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो इतने 1000 बच्चे होने से अच्छा एक ही ऐसा पुत्र जो भगवान के समान हो, वो ऐसा मानते हैं और बोलते हैं कि ये एक पुत्र होते ही मैं जो है संन्यास ले लूँ। तो जो गृहस्थ को ऐसे होना चाहिए, भक्त जो है उसको ऐसे होना चाहिए कि मैं इसमें पढ़ूं और मेरे जो भी मेरे से संबंधित जो भी कार्य है उसे फटाफट पूरा करूं उसको, और जितना जल्दी से जल्द हो सके अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, तो उसको पूरा करके मैं वापस भगवत सेवा में लग जाऊं। जी यहाँ पे कहा गया। और उसका यहाँ पे प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 41। इसमें क्या कहते हैं, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन। इसमें क्या कहा गया है कि जिसने पूरे संसार को छोड़ दिया है भगवान के लिए, भगवान को ही सिर्फ अपना आश्रय माना है, भगवान के चरण कमलों को अपना आश्रय माना है कि यही मुझे यहाँ आश्रय दे सकते हैं, वो किसी के न तो किसी के दास हैं न किसी के ऋणी हैं। चाहे फिर हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है, भूत जितने जीवात्मा है उनका ऋण होता है, हमारे सगे संबंधी का ऋण होता है, हम जिस समाज में रह रहे हैं मनुष्य समाज उसका ऋण होता है। तो हर किसी के प्रति हमारा ऋण है वो हमको पूरा करना है, लेकिन जो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित है वो इन ऋणों में नहीं बंधता। अब भागवतम यही कहता है, चाहे देव हो, ऋषि हो, भूत हो, आप्त हो, नर हो, पितर हो,
किसी के प्रति जो है वो उसका कोई ऋण नहीं रह जाता। और ये जो कहते हैं कि ये जो 4 कुमार हैं, बहुत अच्छा उदाहरण, वो तुरंत जो था उन्होंने इस बात से मना कर दिया। तो ये 2 श्लोक में हम लोग को यही देखने मिल रहा है। चौथे श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी 4 पुत्र सनक, सानंद, सनातन, सनत कुमार का सृजन करते हैं, और वो भक्ति में उनका जो वीर्य है ऊपर की तरफ जो था उनका जाता था, और इसलिए उनका बिल्कुल मतलब जो था भौतिक कार्य में मन नहीं था, भक्ति में उनका मन था उसका। और 5वें श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि वो जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बाबा हे मेरे प्रिय पुत्रों आप सृजन करो, तो वो बिल्कुल इस बात से मना कर देते हैं। तो अगला जो श्लोक है इसमें हम देखेंगे कि कैसे मतलब इस बात से ब्रह्मा जी जब उनको नकार देते हैं तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये देखेंगे आगे कि यही जो गुस्सा है उनका भ्रिकुटी मतलब उनके जो दोनों आईब्रोज के बीच में से निकलता है और शिव जी का उत्पत्ति होती है। तो ये हम अगले श्लोक में देखते हैं। तो हम लोग इसी मैसेज हम लोग ये लेंगे कि हम लोगों को चाहे जैसे यहाँ पे कहा गया जो ब्रह्मचारी है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो गृहस्थ है उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अच्छे संतान, सारे जो संस्कार है उसका पालन करते हुए अच्छे संतान उत्पन्न करना है, न कि वर्ण संकर जो बिना किसी संस्कारों के जो पुत्र होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह जो संबंध करते हैं, तो उनके जो पुत्र हैं वो भी फिर वैसे ही वर्ण संकर कहलाते हैं। तो ऐसे जो है जब समाज में बढ़ते हैं ऐसे वर्ण संकर, तो सिर्फ समाज में नुकसान ही होता है, ये लोग हानि पहुंचाते। तो वैसे नहीं, गर्भदान संस्कार और ये सब जो है नीति नियमों का पालन करके अच्छे पुत्र भगवान के भक्तों को उत्पन्न करना, और फिर जैसे ही अपना कार्य पूरा हो जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ते हुए हमें भगवत की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को, ऐसा नहीं कि जब हम गृहस्थ हैं तो हम लोग को भगवान का सेवा नहीं करना है, बीवी बच्चों का नहीं, तभी भी वो एक कार्य जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए करना है। लेकिन मुख्य जो कार्य है ये हमारा साइड बिजनेस है, असली जो बिजनेस है भगवान की प्रसन्नता, और वो हमको गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए हमको करना है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।